गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऋतुराज एंड वायर। और आज है डे 22 ऑफ 25 डेज आईओटी सीरीज। एंड या आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज सिक्योरिटी इन आईओटी कम्युनिकेशंस। सो देखिए, पिछले कुछ टॉपिक्स बिल्कुल ही सेम थे। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सेम था उनका। सो एक्चुअली जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये जो न्यू फ्रेशर्स आ रहे हैं उनके लिए है। मतलब जो मेरे वीडियो को एकदम नए तरीके से देख रहे हैं या मेरे सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऑन द टॉपिक जंप कर रहे हैं, सो फॉर देम दिस इज अ न्यू थिंग। सो जो पहले से मेरे वीडियोस को देखते आ रहे हैं या एक सीरीज में उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 80 to 90% थिंग्स के बारे में डीप नॉलेज होगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगा, अगर आप मेरे वीडियो को पूरे सीरीज को फॉलो किए हैं। ओके, क्योंकि सेम चीज सेम थिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम एग्जांपल्स भी यहाँ पे रहेंगे, सेम जो कोर कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे बताया था, सेम कोर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बताया था। स्टिल आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, जो मेरे प्रीवियस व्यूअर्स है जो कि एक सीरीज में इसको देखते आ रहे हैं, बिकॉज ये आपके एक रिवीजन हो सकता है। और very much thank you for watching that this whole series constantly, and we will for sure move to the project section 2 after completing this series. And yeah, let's begin with the video. So today main topic is what is security in IoT communication. So security and encryption and authentication. Okay, that is the main topic we're gonna cover today. And our first topic is what is security in IoT communication. Second is learning of encryption. Types of encryption, then types of encryption has two types of encryption: symmetric and asymmetric. Sorry, I have mentioned only symmetric here, or symmetric two times. That is asymmetric for the second option. Fourth topic is encryption protocol used in IoT, meaning of authentication, authentication methods in IoT, authentication versus authorization, secure data flow in IoT, common IoT security mistakes, and real world IoT security examples, means basically applications. Okay, let's begin with the first topic. So yeah, as you can see in the screen, we have our first topic as our screen as why encryption and authentication are needed in IoT. So pretty basic. IoT device communicate over the internet, often without human supervision. This make them easy target for hacker. Data can be read, modified, or stolen. Device can be impersonated. Commands can be injected remotely. So what is the goal of encryption? The goal of encryption is encryption, protect data, authentication, verify identity. So actually what we are doing here is that we are making two levels of security in our IoT system. One is encryption and one is authentication. Who is able to read the data and who has the access to the data is what we call authentication. And encryption is what we can say the code, or in the language the data is being arranged so that no one can steal it. If someone could also access it, and if a malicious person access it, still the data would be of no use to him because our data would be encrypted. So these are the two types of security levels in IoT. There are many levels, but the particular topic that we are covering today is about encryption and authentication. Okay, so let's go to the second topic. Okay, so encryption basic concept: encryption converting readable data, plain text into unreadable form, clip her text using a key, example copy code. देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या है ना कि इनक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन इज समथिंग वी कैन से दैट आप अपने व्हाट्सएप में देखते होंगे, जब आप हम लोग मैसेज भेजते हैं तो आपके वहाँ पर टॉप पे लिखे रहता है आप जिससे भी चैट करें। लाइक मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, ओके, तो जब मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ तो मुझे हमेशा टॉप पे एक वर्ड दिखता है, ठीक है, एक वार्निंग दिखता है। वार्निंग या बोल सकते हैं कि मुझे कॉशन दिखता है, ओके, दैट योर डाटा इज बीइंग इनक्रिप्टेड। मतलब आपका जो भी डाटा है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। लाइक मैं जो डाटा सेंड कर रहा हूं वो जैसे ही मेरे पास से निकल के दूसरे ओनर के लिए मैं सेंड उसको दबाता हूं, सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि उस डाटा को जंबली अरेंज कर दिया जाता है। इसी को इनक्रिप्शन बोलते हैं। उसको इस फॉर्म में इनक्रिप्ट किया जाता है कि उसको कोई भी ह्यूमन अगर स्टील भी कर लेता है मेरे मैसेज को तो वो रीड नहीं कर सकते उस डाटा को। बाद में वो चल जाता है मेरे रिसीवर के पास, और जैसे ही वो रिसीवर के डिवाइस में पहुंचता है, अगर उसको उस डाटा का एक्सेस होगा जो कि मैं प्रोवाइड करूंगा जब मैं उसको सेंड करूंगा, तो वो उस एक्सेस का यूज करके उस डाटा को वापस से डिक्रिप्ट कर सकता है, मतलब डिक्रिप्शन कर सकता है और उस डाटा को रीड कर सकता है। दैट इज ह्यूमनली रीडेबल डाटा।
Okay, that is how our whole we can say that a web version of chatting works. Okay, and the same version of this is being used in IoT system also for transferring data. Like अगर आप JSON के बारे में जानते होंगे, JSON भी कुछ सिमिलर टाइप में काम करता है, ये की पेयर वैल्यू में काम करता है. अब की पेयर वैल्यू जो होता है, ये जब सेंड होता है हम लोग का सेंसर में से, तो सेंसर इसको क्या करता है कि इनक्रिप्ट कर देता है. इनक्रिप्ट करने के बाद इसको वापस से डिक्रिप्ट किया जाता है, सॉरी फॉर द साउंड, इसको वापस से डिक्रिप्ट किया जाता है व्हेन इट गेट्स टू द क्लाउड. ओके, और वहां पे इसको प्रोसेस करके स्टोर कर दिया जाता है. ठीक है. सो इंक्रिप्शन कन्वर्टिंग रीडेबल डाटा प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल फॉर्म, मतलब जंबल वर्ड्स में, जिसको हम लोग क्लिपर टेक्स्ट भी बोलते हैं, यूजिंग अ की. ठीक है, ये की हम लोग को दोनों साइड को अलग अलग दिया जाता है. अब अलग भी दिया जा सकता है, एक भी दिया जा सकता है, इसको हम लोग आगे जाके समझेंगे इसके दो टाइप्स को. इसका एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, ये की पेयर वैल्यू है जेएसएन का. देखिए टेम्परेचर हम लोग का की हो जाएगा, वैल्यू 28 डिग्री सेल्सियस. इनक्रिप्ट कैसे कर देंगे इसको, देखिए इनक्रिप्ट फॉर्म में इसको कर दिए. ठीक है, ओनली द डिवाइस सर्वर विद द करेक्ट की कैन डिक्रिप्ट इट. अब जो भी डिवाइस लाइक जो उस आईओटी डिवाइस का मेन क्लाउड होगा, उसके पास की होगा, इसका एक्सेस होगा, जैसे ही उसके पास ये डाटा पहुंचेगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में, वो उसको डिक्रिप्ट करेगा और अपने अंदर प्रोसेस करके स्टोर कर देगा. होप्स आपको ये सब सब चीज जो मैं अभी सिस्टम पढ़ाया आपको, ये अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि ये प्रीटी बेसिक है. ओके, और इसको मैं पिछले बहुत टाइम से भी पढ़ाते आ रहा हूँ. सो होप्स आपको समझ आया होगा. ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. Types of encryption. So there are two types of encryption. One is symmetric encryption and another one is asymmetric encryption. Okay. So what happens in symmetric encryption is that same key used for encryption and decryption, fast and lightweight, suitable for IoT devices. Like both the person who is sending or who is receiving the data, both have the same key and they can both decrypt and encrypt data. Okay. This is called as symmetric encryption. Okay, for example, AES. AES is a system encryption data, like advanced encryption standard. Okay, problem security sharing the key. So, we have to protect our key, or we can say that we have to store our key like to not get harmed. कि अगर हैकर्स के पास हमारे की हाथ में लग जाता है, तो वो आराम से हमारे डाटा को चोरी कर सकता है. सो दैट इज वेयर एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन कम्स अप. सो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है कि यूजेस टू कीज. ठीक है, एक पब्लिक की होता है और एक प्राइवेट की होता है. पब्लिक की वो होता है जो कि उसको इंक्रिप्ट करता है, और प्राइवेट की क्या होता है जो कि उसको डिक्रिप्ट करता है, मतलब उस डाटा को वापस से रीअरेंज करता है जंबल फॉर्म में से या साइफर टेक्स्ट में से. सो मोर सिक्योर बट स्लो. ठीक है, ये स्लो होता है आईओटी डिवाइसेस में, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर डाटा जल्दी जल्दी चाहिए होता है, फास्ट बोल सकते हैं आउटपुट के लिए. तो हम लोग वहाँ पर सिमेट्रिक को यूज़ करते हैं, बट या इसलिए वो थोड़ा सा मतलब कि इसका ये रहता है कि आईओटी डिवाइसेस हम लोग का लेस सिक्योर या प्रोटेक्टेड रहता है. और यहाँ पर हम लोग का जो हाई लेवल वेबसाइट्स होते हैं उसमें हम लोग यहाँ पर एसिमेट्रिक वे यूज़ करते हैं. लाइक व्हाट्सएप भी सेम ही मुझे लगता है यूज करता है जहां तक मैं जानता हूं. और इसके एग्जांपल्स में आ सकते हैं आरएसए, ईसीसी, एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, यूज्ड मेनली ड्यूरिंग ऑथेंटिकेशन, नॉट कंटिन्यूअस डाटा ट्रांसफर. ये टॉपिक तो फोर्थ टॉपिक था हम लोग का, इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल यूज्ड इन आईओटी. सो अ सिक्योरिटी थ्रेट इज एनीथिंग दैट कैन हार्म और कॉम्प्रोमाइज एन आईओटी सिस्टम. तो बेसिक सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में बात हो रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट क्या है जो हमारे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, उसके डाटा को स्टील कर सकता है या उसको ओवरलोड कर सकता है डाटा के साथ, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ. मेजर आईओटी थ्रेट्स क्या होते हैं? अनऑथराइज्ड एक्सेस, डाटा इंटरसेप्शन, मैलवेयर अटैक्स, मैन इन द मिडिल एंड डिवाइस स्पूफिंग. ठीक है, तो ये बेसिकली कल जो वीडियो मेरे देखे होंगे डे 21 वाला, उसमें ये सारे सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर बोल सकते हैं कि कवर किया था बहुत अच्छे तरीके से. सो मैं तो बोलूँगा कि प्लीज़ आप मेरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए. अगर आपने नहीं किया, फर्स्ट टाइम भी मेरे वीडियो को देख रहे हो तो इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मैं तो इसको बेसिक लेवल पे ही समझा रहा हूँ. और वापस से मेरी सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा, दैट विल बी बेटर फॉर यू. और आपको रियल आईओटी नॉलेज होगा. ठीक है, आपको क्यूरियोसिटी भी बनेगा जिस तरीके से मैं समझाता हूँ. ओके, अब इट्स अप टू यू. सो चलिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होता है, ये अटैकर गेन्स कंट्रोल्स ऑफ डिवाइस. लाइक अटैकर जो रहता है, ये अपने आप को एक ऐसे वे में आइडेंटिफाई कराता है सिस्टम को. लाइक जो भी हम लोग देखिए, ऑथराइजेशन क्या होता है? ऑथराइजेशन एक की या एक्सेस टोकन होता है जो कि बस ओनर के पास होता है या ओनर रिलेटेड पर्सन के पास होता है, जो कि उसको यूज कर सकता है किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए. अब जो यहाँ पर अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन
प्रिटेंड करता है अपने आप को एज एन ओनर और समवन हु हैज द की टू एक्सेस द डाटा और डिवाइसेस और क्लाउड्स। ओके, और वो प्रिटेंड करके अगर उसको आईटी डिवाइसेस प्रिटेंड कर लेता है कि हाँ ये ओनर ही है, और उसको अगर मिल जाता है एक्सेस, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। हमारे सारे डिवाइसेस जो कि क्लाउड से कनेक्टेड है उसको वहां पे वो ऑल्टर कर सकता है, ठीक है, उनके वर्किंग को। अब डाटा इंटरसेप्शन क्या होता है? डाटा कैप्चर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मतलब डाटा जब ओवर द एयर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम अ सेंसर टू अ क्लाउड, उसी टाइम उस डाटा को चोरी करना इन मिडिल, लाइक हाथ से तो नहीं चोरी करेंगे, बट वी विल यूज डिफरेंट टाइप्स। लाइक जियोसिन क्या होता है? जियोसिन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, तो डेटा ट्रांसिट टाइम हम लोग जियोसिन का अगर हम लोग की निकाल लेते हैं और अगर वहां से डाटा चोरी कर लेते हैं, सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ डाटा इंटरसेप्शन। ओके, फिर मैलवेयर अटैक्स, तो हार्मफुल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन डिवाइसेस, लाइक इतना, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि हार्मफुल सॉफ्टवेयर किस तरीके से लोग इंस्टॉल कर सकते हैं कि लाइक आप समझ लीजिए अपने आईओटी डिवाइसेस में यूज करने के लिए कोई पर्टिकुलर टूल इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और इसके साथ एक मैलवेयर इनसाइड इनसाइड अ पर्टिकुलर फाइल ये इनक्रिप्ट होके आ जाता है। ओके, और बाद में ये आपके पूरे सिस्टम के अंदर आपके पूरे सिस्टम को इन चीज इसका डिलीट कर सकता है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली डाटा इसका जो होता है उसको डिलीट कर सकता है, या ट्रांसफर भी कर सकता है, या कॉपी करके उसको ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है? अटैकर ऑल्टर कम्युनिकेशन, मतलब कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो चाहता है कि ये जो डिवाइस है ये बंद हो जाए, तो वो क्या करता है? वो ओवरलोड ऑफ डाटा कर देता है, ठीक है। और डिवाइस स्पूफिंग में क्या होता है? फेक डिवाइस प्रिटेंड टू बी रियल, ठीक है, ये तुम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं पहली वाला मैन्युफैक्चर्ड एक्सेस में, कि कैसे कोई भी पर्सन अपने आप को किसी और पर्सन का आइडेंटिटी लेके, इज लाइक ओनर ऑफ द डिवाइस का आइडेंटिटी लेके वो एक्सेस लेने की कोशिश करता है, इसको में डिवाइस स्पूफिंग बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल होते हैं हैकर प्रिटेंडिंग टू बी अ सेंसर एंड सेंडिंग फॉल्स डाटा। अब लाइक हम आपको ओनर के बारे में बताए थे, बट यहाँ पर एक हैकर सेंसर का भी यूज कर सकता है, और समझ लीजिए कि क्लाउड का काम है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा आईओटी डिवाइस जो होता है, आईओटी सिस्टम जो होता है, वो क्या करता है? वो सेंसर से डाटा लेता है, क्लाउड में स्टोर करता है, और क्लाउड से फिर डैशबोर्ड में भेजता है या फ्रंट एंड में भेजता है, जहां पे वो डैशबोर्ड में शो होता है। अब पर्सन क्या कर रहा है, कोई मतलब जो हैकर है, वो अपने आप को एज अ सेंसर आइडेंटिफाई करता है जो आईओटी सिस्टम में, और फिर रॉन्ग डाटा भेजता है, और क्लाउड क्या करेगा? उसको बाद में डैशबोर्ड में दिखा देगा। सो अब आप सोच ही सकते हैं कि इसका कितना गलत यूज हो सकता है, कितने बुरे लेवल पे। सो दैट वाज अ गुड एग्जांपल फॉर दैट। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ टॉपिक हियर। सो आवर फिफ्थ टॉपिक इज मीनिंग ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन का तो कुछ मैंने पहले ही आपको बता दिया है, बेसिक्स। सो ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ डिवाइस और यूजर इन आईओटी। सो डिवाइस प्रूव इट इज जेन्युइन, सर्वर प्रोवाइड इट इज ट्रस्टेड, विदाउट ऑथेंटिकेशन एनी फेक डिवाइस कैन सेंड डाटा, ठीक है। सो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि किसके पास कौन सा की है। कल कल जैसे कि मैं बता रहा था, ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि वो वापस से वो एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ। जो मेरे सीरीज को देख रहे हैं उनको पता होगा मैंने इस एग्जाम्पल को कितना बार अभी तक ओवर यूज कर चुका हूँ, बट इट इज़ अ रियली गुड एग्जाम्पल। लाइक अगर समझ लीजिए कि हम लोग एक होटल के अंदर जाते हैं, हम लोग होटल के स्टाफ हैं, लाइक अ वेटर, तो हम लोग को एक पर्टिकुलरली आईडी कार्ड दिया जाता है, जिसको दिखा के हम लोग रूम के मतलब होटल के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको एक्सेस मिल जाएगा होटल का। बट नाउ अब आपको एक पर्टिकुलरली रूम का कार्ड भी दिया गया होगा जहां पे आप स्टे कर रहे होंगे, इफ इट इज अ पेड होटल फॉर यू। सो आप उस कार्ड से अपने रूम में ही जा सकते हैं, आप क्या पूरे होटल के रूम को खोल सकते हैं उस कार्ड से? नहीं। सो फॉर एवरी रूम देर इज अ डिफरेंट कार्ड, ठीक है। दैट इज अ गुड एग्जांपल दैट हाउ आवर आईओटी सिस्टम वर्क। आईओटी सिस्टम भी सेम बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म यहाँ पर फॉलो करता है कि एक्सेस जब दिया जाता है तो पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर ही एक्सेस दिया जाता है पर्टिकुलर थिंग्स करने के लिए आईटी सिस्टम में। ओके, सो इसीलिए हम लोग को पहले देखिए, ऑथेंटिकेशन ये ऑथराइजेशन था एक्चुअली में। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि डिवाइस को पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि जो आईओटी वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है वो सही में वो आदमी है कि नहीं। लाइक इफ यू आर गिवन अ एक्सेस टोकन बाय अ ओनर टू use or work on the particular device in a IoT system. Okay, so when you get into the IoT system, you cannot get specifically, or we can say that direct entry to the IoT system. You have to first identify yourself as a man or a person who has the access key for a particular device to have the access of the particular device. Okay, that is what we call an authentication method. So device proof it is genuine, server proof it is trusted. Without authentication, any fake device can send data. Okay. That was all for fifth topic. Now sixth topic is authentication methods in IoT. So देखिए, आप कुछ कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे। ये कुछ नया है जो मेरे सीरीज को पहले से देखते आ रहे उनके लिए यहाँ पे ये नया है, और बाद बाकी तो सबको यहाँ पे पढ़ना ही है। यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, एक यूजर नेम और पासवर्ड आपको दिया जाएगा ओनर के द्वारा, या
IoT सिस्टम के द्वारा। सिंपल, लास्ट लीस्ट सिक्योर, नॉट रिकमेंडेड फॉर लार्ज IoT सिस्टम। API की ऑथेंटिकेशन, की एक्सेस टोकन वाला जो टोकन या की में हम लोग को दिया जाता है। यूनिक की असाइन टू ईच डिवाइस, कॉमन इन IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, एग्जाम्पल थिंगस्पीक API की एंड फायरबेस डाटाबेस की। इन दोनों की को याद रखिएगा, ये सबसे मोस्ट कॉमन कीज है जो कि यूज होता है IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में। ओके, 7 टॉपिक है ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन। टर्म मीनिंग ऑथेंटिकेशन, हु आर यू, ऑथराइजेशन व्हाट आर यू अलाउड टू डू। एग्जांपल, ऑथेंटिकेशन डिवाइस वेरीफाइड, ऑथराइजेशन अलाउड टू सेंड डाटा बट नॉट कंट्रोल एक्चुएटर्स। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, वो होटल वाले एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चला होगा। ऑथराइजेशन क्या है, वो आईडी कार्ड जिससे कि आप होटल के अंदर एंटर कर सके। ऑथेंटिकेशन क्या है, जिससे कि आप उस रूम आईडी से आप अपने रूम के अंदर जा सके, बट आपको और जितने सारे रूम है उसमें जाने नहीं मिला। तो सिंपली दैट इज व्हाट ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन इज। सो ऑथेंटिकेशन, हु आर यू, एंड ऑथराइजेशन व्हाट आर यू अलाउड टू डू। तो हु आर यू, आई एम अ वेटर, एंड ऑथराइजेशन, आई एम अलाउड टू गो टू अ स्पेसिफिक रूम दैट इज अलॉटेड टू मी बाय द होटल। ओके, होप्स आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं 8 टॉपिक की तरफ। सिक्योर IoT डाटा फ्लो। So device connects to servers, authentication occurs, encrypted channel is created, data is transmitted securely, server validates and responds. ओके, सो सिक्योर IoT डाटा फ्लो कैसे होता है कि डिवाइस पहले कनेक्ट होता है सर्वर से, मतलब क्लाउड से, और ऑथेंटिकेशन होता है। ओके, इनक्रिप्ट चैनल इज क्रिएटेड एंड डाटा इज ट्रांसमिटेड सिक्योरली, सर्वर वैलिडेट्स एंड रिस्पॉन्ड। ठीक है, मतलब ऐसे ही डाटा उसमें से पास हो पाएगा जो कि वैलिड डिवाइसेस से आ रहा है और वैलिड रिसीवर के पास जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा फ्लो काम करता है। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा, इफ यू लाइक सो। चलिए हम लोग 9 टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन IoT सिक्योरिटी मिस्टेक्स। सो हार्ड कोडेड पासवर्ड रखना जो कि आप भूल जाए, सेम API की फॉर ऑल डिवाइसेस, सिमेट्रिक रहना, नो इंक्रिप्शन, ओपन क्लाउड डाटाबेसेस, नो ऑथेंटिकेशन चेक्स। सो ये तो बेसिक चीज है जो कि आपको अपने IT डिवाइसेस में नहीं करना है। ठीक है, लाइक आपको मेंटेन करना है इंक्रिप्शन को, क्लाउड ओपन क्लाउड बेस नहीं रखना है, ऑथेंटिकेशन को चेक लगाना है अपने डिवाइस में फॉर प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम मैलवेयर एंड हैकर्स। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा रियल वर्ल्ड IoT सिक्योरिटी एग्जांपल्स, एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो स्मार्ट मीटर इनक्रिप्ट पावर यूसेज डाटा, स्मार्ट लॉक ऑथेंटिकेट यूजर बिफोर अनलॉकिंग, एंड हेल्थ IoT डिवाइस इनक्रिप्ट पेशेंट डाटा। ओके, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो में आ गए। आपको पता है कि यहाँ पे क्या करना पड़ता है, वीडियो स्टॉप कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं इसके सॉल्यूशन बताऊंगा जहां पे आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, ओके, सो इफ यू हैव सॉल्व द क्वेश्चंस, लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन पार्ट। सो देखिए पहला क्वेश्चन है MCQ का, इंक्रिप्शन इज यूज टू। सो इंक्रिप्शन किस चीज के लिए यूज होता है, तो इसका आंसर हाँ बी होगा, प्रोटेक्ट डाटा, डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो वाई इंक्रिप्शन स्क्रैम्बल्स डाटा सो दैट इफ अ हैकर स्टील इट दे कैन नॉट रीड इट। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे डाटा को स्क्रैम्बल कर दिया जाता है इंक्रिप्शन में, और उसको डिक्रिप्शन के बाद ही हम लोग डाटा को वापस से रीअरेंज कर सकते हैं विद अ पर्टिकुलर की दैट इज बीइंग असाइंड फॉर डिक्रिप्टिंग द मैसेज। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है विच इंक्रिप्शन यूजेस द सेम की, कौन सा इंक्रिप्शन हम लोग को सेम की यूज करता है, तो AES यूज करता है, सॉरी एस, हाँ AES यूज करता है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो सॉरी एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, हम यहाँ पे सिमेट्रिक और सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक समझ रहे थे। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक में हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट कीज होता है। सो सेम कीज हम लोग का AES में यूज होता है, और ये बोल सकते हैं कि ये हम लोग का थोड़े कम लेवल पे, मतलब कि लेस सिक्योर होता है, क्योंकि एक की है और हर जगह यूज हो रहा है, तो कोई भी उसको अगर एक बार ले लेता है तो वो हर डिवाइसेस को यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। API की आर यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है API की। हमने पढ़े थे फायरबेस API की, डाटा थिंगस्पीक API की, ये कुछ कुछ अच्छे एग्जांपल थे इसके। HTTP इज मोर सिक्योर देन HTTP बिकॉज इट इज इनक्रिप्टेड। हाँ, तो देखिए इसका आंसर इनक्रिप्टेड होगा, क्यों होगा, क्योंकि HTTP यहाँ पर क्यों ज्यादा सिक्योर होता है, HTTPS यहाँ पर HTTP से क्यों ज्यादा सिक्योर होता है।
सबको पता है, सब बचपन में पढ़े हुए हैं, जब वो स्कूल टाइम्स में होंगे तो, कि एचटीटीपी जो होता है, एचटीटीपीएस जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो सिक्योर जब यहाँ पर एस लग जाता है तो इसका मतलब होता है सिक्योर आपके डाटा को इंक्रिप्ट करके ट्रांसफर करना। तो इसमें आपका डाटा यहाँ पर चोरी नहीं हो सकता है और आपके डिवाइस में मैलवेयर फंक्शन नहीं आ सकता है। ठीक है, सो that is a pretty good difference between HTTPS and HTTP that make HTTPS more encrypted and protected for your devices. Fifth question है, which is most secure for IoT authentication? So API keys are most secure? नहीं सॉरी, इसका सर्टिफिकेट भी आंसर हो सकता है मुझे जहाँ तक लगता है। एपीआई की ऐसे सिक्योर होता है बट सर्टिफिकेट भी एक तरीके का होता है। लाइक एक मिनट मैं चेक कर देता हूँ। हाँ, आप एपीआई की ही इसका आंसर लिखिए, मैंने भी एपीआई की ही किया था। ठीक है, शॉर्ट आंसर यहाँ पे दिया है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इंक्रिप्शन इन आईओटी। तो इसका बेसिक मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ क्योंकि डेफिनेशन तो मैं बता ही चुका हूँ उसको। सो हाँ, it is the process of converting readable data, plain text, into unreadable code, which is ciphertext. How to explain it? Imagine putting a message inside a locked steel box. Before mailing it, only the person with the right key can open the box and read the message. मतलब बेसिकली मैंने जैसे यहाँ पे लिखा था आपको समझाने के लिए कि आपके डाटा को एक स्टील बॉक्स के, समझ लीजिए कि आप एक चिट्ठी लिखते हैं। ठीक है, आप ओल्ड एज टाइम में रहते हैं, आप चिट्ठी लिखते हैं और आपको एक ऐसा ताला मिला हुआ है अपने मम्मी से कि जो ताला एक बार अगर लग गया तो उसका दो ही की है, एक आपके पास एक मम्मी के पास। तो आप जो मेल था उसको एक स्टील बॉक्स में बंद कर दीजिए, उसको ट्रांसफर कर दीजिए। अब वो स्टील का बॉक्स ऐसा है कि वो ब्रोक हो ही नहीं सकता है, वो ताला खुलेगा तभी उसके अंदर का मटेरियल आप देख सकते हैं। ठीक है, सो जो की है वो जो दूसरे पर्सन के पास होगा उस की को खोलेगा और उस डाटा को ले पाएगा। मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको बॉक्स मिलने पे ही वो बॉक्स खुलेगा। ठीक है, दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वी कैन से प्रीमियम थिंग्स अकर्ड इन वे बैक टाइम। ठीक है, मैंने किसी पिक्चर या सीरीज में देखा था, मुझे याद नहीं है। हाँ, सेकंड डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के बीच का डिफरेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक आपको अच्छी तरीके से अभी तक समझ आ चुका होगा, तो मैं इसके कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। So symmetric uses one single key for both locking encryption and unlocking decryption. It is faster, but you have to keep the key safe. ओके, हम लोग को की को भी सेफ रखना है और थोड़ा आईओटी डिवाइस यहाँ पे लेस सिक्योर भी है क्योंकि सारे डिवाइसेस एक ही की से खुल जा रहे हैं। ठीक है, मतलब की मिल गया तो फिर तो सारी डिवाइस का आपको बोल सकते हैं कि एक्सेस मिल गया है। ओके, एसिमेट्रिक जो होता है इसमें डिफरेंट कीज आर बीइंग यूज्ड, uses two keys, a public key to lock the data and a private key to unlock it. It is more secure but slow. जिसका एक अच्छा एग्जांपल हम आपको दिए थे कि व्हाट्सएप भी कुछ इसी लेवल पे काम करता है आपके इंक्रिप्शन करने के लिए डाटा को। अब उनके लिए तो और ऊपर लेवल तक काम चलता है इंक्रिप्शन करने के लिए, फॉर बेटर इंक्रिप्शन। Third question is what is authentication? So it is the process of verifying identity. It answers the question, are you really who you say you are? How to explain it? It is likely a security guard at a gate checking your ID card before telling you to enter a building. Like इसका एग्जांपल हम आपको दिए थे कि होटल के अंदर जाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आईडी कार्ड। तो आप उस गार्ड को दिखाएंगे तभी ना आपको होटल के अंदर जाने देगा। सो दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ऑथेंटिकेशन। फोर्थ टॉपिक है एक्सप्लेन एपीआई की ऑथेंटिकेशन। तो एपीआई की इज अ वेरी good thing to use in authentication instead of user and password name, because API keys are specifically made for IoT devices, for some of the IoT devices like ThinkSpeak API keys and Firebase API keys. So the server gives the client a unique, sorry, it is the process of verifying, sorry. We were doing fourth question. I thought we were in third. The server gives the client a unique long string of code, the key. Every time the client requests data, it sends the key. If the key matches, the server allows access. It works like a unique password for a machine. If the machine shows the right secret code, the server opens the door. ओके, तो बेसिकली वही है कि राइट आपके पास की होना चाहिए और मतलब आईडी कार्ड आपका सही होना चाहिए तभी आपको अंदर जाने मिलेगा, नहीं होगा तो आपको एक्सेस डिनाई कर दिया जाएगा। फिफ्थ है व्हाई इज आईओटी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, जैसे कि हम लोग लास्ट टॉपिक जब हम कवर कर रहे थे 10 टॉपिक, तो वहाँ पे हम आपको बताए थे, सॉरी 9 टॉपिक, तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि आईटी सिक्योरिटी क्यों जरूरत है। सो आईटी डिवाइसेस कनेक्ट द डिजिटल वर्ल्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड लाइक स्मार्ट लॉक्स, कैमराज और कार्स। तो इसका हम आपको अगर एक लेवल दे दे कि क्यों आईओटी सिक्योरिटी जरूरत है, समझ लीजिए आपके घर में कैमरा लगा है, सिक्योरिटी कैमरा लगा है और उस पर कोई भी हम लोग बोल सकते हैं ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन एंड एन्क्रिप्शन को कोई मेथड ही नहीं है। तो कोई भी हैकर अगर आपके इनसाइड ऑफ लिविंग रूम का अगर कैमरा यूज कर लेता तो वो
वो कंप्लीटली आपके प्राइवेसी को ब्लीच कर सकता है, ठीक है, ब्रीच करके वो आपके प्राइवेट डाटास को भी लीक कर सकता है, ओके। So that is a good example. If a computer is hacked, you lose file. If an IoT device is hacked, someone would unlock your front door, spy on your camera, crash a smart car. It is safety issue, not just a data issue. Okay. That was all for the video today, and our question answers are also completed. If you like the video, please subscribe to my channel, and if you have any query or doubts, please comment it out. I will make sure to answer your questions if you have any. And yeah, we have only 3 videos left to cover our IoT series, and then we will move on to the project section. So bye, we will meet in day 23. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.